note it down this question. Just we are going to solve at the board. Either you can take a screenshot of the question. Just I am going to read the question so that you can tally it. Prepare accounting equation from the following transactions. First, business started with cash rupees 5 lakhs. Second, bought goods for cash rupees 50,000. And third is here. I think there is some missing. Uh, Third is goods costing rupees 20,000 was sold at a profit of 25%. Right now, fifth one transaction. Fourth, bought furniture for rupees 10,000 and now paid salary for rupees 5,000 and then received commission rupees 2,000 and last bought goods on credit from Ram rupees 40,000. Okay, so students, I think is it clear to all of you this question? So see here, just we are going to roughly working note first ki how many number of asset will be created. So assets, liability and capital. Just working note I am doing here. So first transaction is, I think you have written, business started with cash. So cash is what? Assets. So cash column will be created in asset side. But cash is coming to you from where? From the owner, because owner is starting the business and the money invested by owner is called capital. So one column will be created for capital. So in first transaction, two columns will be created, first for the assets or cash and second one is for capital. Second transaction, it is written bought goods, okay, for cash. So आपने goods cash purchase किया. So cash तो already create कर चुके हो, तो cash से adjust हो जाएगा, लेकिन आप क्या खरीद रहे हो? Goods. तो goods आ रहा है, goods assets होता है. So goods को हम लोग goods भी लिख सकते हैं या उसको हम लोग stock के नाम से record करेंगे accounting equation में, right? तो हो जाएगा दोनों इफेक्ट इसमें, जैसा कि हम लोग को पता है each and every transaction having two fold effect, ठीक है? सो दोनों साइड इफेक्ट करेगा किसी न किसी वजह से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि बॉट फर्नीचर. सो अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं आप, सो फर्नीचर एसेट्स है और आप कैश से खरीदेंगे तो कैश तो ऑलरेडी बना चुके हैं. नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold at a profit of 25%. So obviously goods सेल कर रहे हो, so कैश आएगा, कैश ऑलरेडी बना है, गुड्स जाएगा आपके पास से, गुड्स का भी बना हुआ है तो कॉलम अब बनाने की जरूरत नहीं है इन दोनों का. लेकिन आप प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, सो प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रॉफिट मिलता है ओनर को, तो ओनर का कैपिटल में ऐड होता है तो वो भी ऑलरेडी बना हुआ है तो उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा. अब है आपका पेड सैलरी. पेड सैलरी, सो पेड सैलरी में क्या करेंगे हम लोग? ओके, सो paid salary is an expenses and already have taught in the last class कि no column will be created for the asset expenses, for the income and for drawing, right? So salary paid is an expenses, so salary will be minus from cash and hence it is an expenses, so it will be minus from capital, so no column we need to create. Again, commission received, so commission received is an income because we are receiving, so income will be added in cash and added in capital because owner बिजनेस स्टार्ट करता है इनकम अर्न करने के लिए और जो भी एक्सपेंसेस होता है वही खुद बियर करता है. अब एक ट्रांजैक्शन होगा आपके क्वेश्चन में कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट. जब आप गुड्स उधार खरीदोगे तो कैश से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है. सो गुड्स में तो ऑलरेडी बना के रखे हो कॉलम तो ऐड कर लोगे, लेकिन आपने उधार खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा. सो व्हेन वी डू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, okay, when we do purchase goods on credit, so the person from whom we purchase is called creditors. So creditor क्या होता है? Liabilities, right? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा. जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं क्लास किए थे, उन लोग को पिछला वीडियो देखना चाहिए जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था.
सो ये देखो आपके पास कॉलम आ गए, कैश, गुड्स, फर्नीचर के एसेट्स में 3 कॉलम क्रिएट होंगे, लायबिलिटीज का क्रेडिटर और कैपिटल फॉसी। सो नाउ इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रिपेयर करेंगे कॉलम एज पर वर्किंग। सो एसेट्स में क्या किया जा रहा है, कैश, देन स्टॉक, स्टॉक और गुड्स, देन फर्नीचर, राइट। ये हो गया एसेट्स। अब लायबिलिटीज में क्या क्या क्रिएट हुए, क्या, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, तो ऑलरेडी कैपिटल है ही। सो देखिए आप कैसे लिखते हैं, आपको समझ में आया। तो पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, रीड करने के बाद हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में कौन कौन से एसेट क्रिएट हो रहे हैं और लायबिलिटी। ठीक है, जो एक बार एसेट क्रिएट हो गया, दोबारा अगले ट्रांजेक्शन में फिर वही एसेट्स आ रहा है, तो दोबारा से फिर नहीं बनाते, जो न्यू एसेट्स आता है हर बार उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो कैश, स्टॉक, फर्नीचर और एसेट्स, यू ऑल आर नोइंग, ये फॉर द फिक्स्ड एसेट्स है या नॉन करेंट, और ये दोनों करेंट है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। क्रेडिटर और कैपिटल। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक यू आर हैविंग द क्वेश्चन, और जो नहीं रखा है क्वेश्चन आप लोग शेयर कर लेंगे, मैं वैसे रीड आउट कर दे रहा हूँ। सो पहला है बिजनेस स्टार्टेड। सो इन ट्रांजेक्शन कॉलम वी विल राइट बिजनेस स्टार्टेड, ओके। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश मैंने डिक्टेट कर दिया, इसलिए आप लोग सुनकर भी लिख सकते हो ट्रांजैक्शन में। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विद रुपीज 5 लाख। कितने रुपए से, 5 लाख से। क्वेश्चन में गिवन था, जो मैंने अभी सॉल्व लिखवाया था क्वेश्चन, तो उसमें 5 लाख था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या हो, मैंने पहले ही बताया था, यू ऑल आर सपोज्ड योरसेल्फ अकाउंटेंट नॉट ओनर। सो आप लोग अकाउंटेंट हो और सपोज दैट मैं ओनर हूँ, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसको पैसा दूंगा, अकाउंटेंट को। तो आपके हाथ में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब तो आप अपने पास पैसा ले रहे हो, तो लिखोगे कैश में 5 लाख रुपीज। आपके पास पैसा आया तो आप कैश में प्लस कर दोगे 5 लाख। अब ये पैसा कौन दिया, ओनर दिया, तो ओनर के पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल। सो अब इसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखो जितना ये आरएचएस और एलएचएस वाला कॉन्सेप्ट हमेशा देखो, एसेट प्लस होगा तो लायबिलिटी भी प्लस होगा। अगर लायबिलिटी प्लस नहीं हो रहा है तो एसेट्स में ही कुछ माइनस हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके से एनी हाउ आवर अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी प्रूव्ड। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन व्हाट आई हैव सॉल्व्ड हियर, you also supposed to do. So now students, second transaction is bought goods for cash rupees 50,000. It means we are buying goods, so goods are coming and cash is going. So here we will write in transaction bought goods for cash. You can write also in transaction column money. ओके, सो कैश हमने खरीदा गुड्स, तो आप देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा इसका एकदम अच्छे से। सो जब हमने कैश गुड्स परचेस किया तो पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा, जाएगा हमारे पास, राइट। सो हम पहले पैसा माइनस कर लें, तो कितना रुपया माइनस करना है, 50,000। ठीक है, हमने 50,000 लेस कर दिया, तो पैसा तो गया हमारे पॉकेट से, लेकिन बदले में आ क्या रहा है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एज आई हैव सेड ऑलरेडी। सो गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, सो गुड्स का कॉलम क्या है, स्टॉक है। सो कितने रुपए का, 50,000 का, तो 50,000 प्लस कर लिया, यानी 50,000 गया और 50,000 का गुड्स आ गया। बाकी हमारे अदर एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। फर्नीचर पे कोई असर नहीं, क्योंकि फर्नीचर का कोई ट्रांजेक्शन नहीं। क्रेडिटर पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना तो कैपिटल से कोई मतलब है, कैपिटल भी एज इट इज है। ठीक है, सो अब हम लोग करेंगे क्या कि इक्वेशन बनाएंगे। मालूम है कि दूसरे ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था। सो इक्वेशन यहां लिखेंगे। सो इक्वेशन में क्या होगा, 5 लाख माइनस 50,000, तो 4,50,000 प्लस यहाँ 50,000 हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 50,000 है। अब यहाँ क्या होगा, 0 रहेगा, कुछ नहीं है।
क्रेडिटर में भी 0 ही रहना है, और कैपिटल में 5 लाख का 5 लाख। सो यहाँ तक तो आपका ट्रांजेक्शन प्रूफ हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 4,50,000 प्लस 50 is equal to 5 lakh. Total asset is 5 lakh and total liability is again also 5 lakh, right? So we will move towards the next transaction. So bought furniture. So again you are going to buy furniture. So आप लिखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन में bought furniture. Okay, bought furniture for how much? 10,000. So पैसा हमारे पॉकेट से जा रहा है. So जा रहा है तो कैश माइनस होगा। ओके, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट, सॉरी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है। फर्नीचर हमने खरीदा तो फर्नीचर कितने का आएगा? 10,000 का, राइट? तो 10,000 का फर्नीचर आ गया। तो देखो जितना रुपया हमने यहाँ माइनस किया उतने ही का यहाँ प्लस हो गया एसेट्स में, और इधर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है हमारा। सो अब जो होगा, पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन पास करने के बाद इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन के बाद जितने ट्रांजेक्शन पास करेंगे, एंट्री करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? सो अब हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन का मतलब चेंज इन इक्वेशन। पहला वाला इक्वेशन ये था ट्रांजेक्शन के बाद, फिर से इक्वेशन बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। सो 4,50,000 माइनस 10,000 तो विल बी 4,40,000। देन स्टॉक 50,000, देन 10,000 आपका फर्नीचर, राइट? और इधर कुछ नहीं चेंज हुआ है तो यहाँ 5 लाख का 5 लाख। तो आप देख सकते हो कि 4,40,000 प्लस 50 4,90,000 प्लस 10 5 लाख, और 5 लाख इधर भी है, यानी हमारा टोटल एसेट एंड लायबिलिटी कैपिटल प्रूव हो रहा है, राइट? सो अब हम लोग नेक्स्ट को ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग, आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold at profit of 25%. ओके, सो अब बताइए कि कैसे ट्रांजैक्शन होगा। तो अब देखिए मैं आपको पहले वर्किंग दिखाता हूँ। यहाँ पे सभी लोग वर्किंग नोट करेगा, फिर हम इरेज कर देंगे इमीडिएटली, ठीक है? अब अच्छे से देखो आप सभी लोग। सो वर्किंग है आपका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट कितना है? 20,000, प्रॉफिट कितना है? 25%। तो 25% किसका है? कॉस्ट का। सो हम लोग प्रॉफिट पता कर लें तो 20,000 रुपीज इंटू 25%, सो कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 आ गया आपका प्रॉफिट। तो यानी कि आप कितने रुपए में सेल करोगे? 25,000 में। 20,000 का गुड्स प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट हमने ऐड कैलकुलेट किया 20,000 इंटू 25%, तो 5,000 आया। 5,000 रुपीज को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे कॉस्ट में, तो आ जाएगा 25,000। तो आपके पास पैसा आ रहा है कितना? 25,000। आपके पास पैसा कितना आया? 25, बट आपके पास से गुड्स कितने का माइनस हो रहा है? 20,000। आपके पास से गुड्स जा रहा है 20,000 का। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ओनर को। ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल। सो 5,000 रुपीज प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया कैपिटल में, बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है? तो यहां तक तो हो गया, आप सभी लोग नोट कर लो इसे, ठीक है? अब हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 4,40,000 प्लस 25, सो कितना हो जाएगा? 4,65,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 is equal to 0 plus 5,05,000, 5,05,000, ये देखिए आप, ठीक है? 5,05,000। अब इसके बाद से फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स
सॉरी, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹5,000, पेड सैलरी ₹5,000। तो हमने ट्रांजेक्शन में लिखा पेड सैलरी ₹5,000। अब ये सैलरी पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पॉकेट से जाएगा, सो माइनस करेंगे 5,000, ठीक है। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा कैपिटल में। कैपिटल में चेंज क्यों होगा? क्योंकि लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं। तो अब हम लोग न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 10,000, फिर 30,000 और 4,60,000। यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो समझ में आया एक्सपेंसेस का कैसे हुआ, ताकि उस दिन छूट गया था, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंसेस हुआ तो पैसा जा रहा है और उधर कैपिटल से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसिप्ट, आई थिंक। सो कमीशन रिसिप्ट इनकम है, तो आप पहले लिखिए ट्रांजेक्शन में, ठीक है। कमीशन रिसिप्ट, तो कमीशन रिसिप्ट कितना आपने रिसीव किया है? सो यू हैड रिसिव्ड कमीशन ₹2,000। सो आपके लिए ये क्या है? इनकम है, ठीक है। इनकम आपने ऐड कर लिया 2000। अब क्या है कि ये इनकम किसको मिलेगा? ओनर को। जैसा कि सैलरी पेड किया था तो ओनर से माइनस हुआ था, तो इनकम है तो ओनर में ही ऐड करेंगे। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा इन सारी चीजों में, ठीक है। सर आपका आवाज साफ समझ में नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर कमीशन रिसिप्ट, तो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन। सो 5,02,000 जीरो, और ये हो गया 10,000, फिर 30,000 एंड 4,62,000। आई थिंक ये न्यू इक्वेशन हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन। सो लास्ट ट्रांजेक्शन पे आप देखो कि क्या लिखा है। लास्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, आई थिंक इट इज अ 40,000। फ्रेंड्स 40,000 का है। फ्रेंड्स 40,000 है लास्ट ट्रांजेक्शन। यस सर। ओके, सो आपने गुड्स उधार खरीदा तो कैश में कोई चेंज नहीं होगा, गुड्स आपके पास आएगा 40,000 का, और आपने ये गुड्स उधार खरीदा है, सो क्रेडिटर क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्रेडिटर क्रिएट होगा, आप देखो ये, तो यहां पर हमने गुड्स पे ऐड कर दिया और क्रेडिटर में। अब ये इस लास्ट ट्रांजेक्शन था, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, जब लास्ट ट्रांजेक्शन पास कर लेते हैं उसके बाद जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग फाइनल इक्वेशन कहते हैं, राइट। सो अब यहाँ लिखते हैं 4,62,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 5,02,000। अब आप लोग टोटल करके चेक करो कि एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल आ रहा है। 4,62,000, 70 एंड 10, और इधर हो जाएगा 5,02,000 और 40। सो दोनों सेम आना चाहिए, 5,42,000 होना चाहिए। सो 5,42,000 आई थिंक it is there when you will total it,